Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to continue our chapter 2 stories about flying. We studied the first story in the first lecture and in this lecture we are going to study the second part which is the black aeroplane. Okay, so this story is about a pilot who witnesses something really strange when he is up in the air in his aeroplane. So let's स्टडी दैट वो ऐसा क्या विटनेस करता है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रेंज होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. So this story has been written from the perspective of the pilot. Okay, that's why यहाँ पे सब जगह I का यूज हुआ है. I कौन है यहाँ पे? जो पायलट है वो. Okay, so the pilot is saying that the moon was coming up in the east. That means रात होने लगी थी behind me and the stars were shining in the clear sky above me. That means the sky was clear. कोई वहाँ पे clouds नहीं थे, कोई storm नहीं था. sky एकदम clear था, वो stars देख सकता था sky में. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. And he was the only one there. वहाँ पे और कोई नहीं था और कोई एयरप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं था, क्लाउड्स भी नहीं थे बिल्कुल भी. सो ही वाज वेरी हैप्पी जब वो कंट्री साइड के ऊपर से उड़ के जा रहा था. एंड एवरीवन वाज स्लीपिंग बिकॉज इट वाज नाइट टाइम. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. He was coming back to England. वो इंग्लैंड आ रहा था वापस. Over France, France से गुजर रहा था वो. And he was flying his old Dakota airplane. Okay. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So he was very happy कि वो holidays पे जा रहा है. Holidays start होने वाले थे और वो अपनी family के पास जा रहा था. Holiday season था. Everyone is always happy जब वो अपनी family के पास holidays में जाते हैं. तो वैसे ही हमारा writer भी बहुत happy था. I looked at my watch. 1:30 in the morning. उसने अपनी वॉच में टाइम देखा. 1:30 in the morning it was. I should call Paris control soon. उसने कहा कि मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देता हूँ because you have to follow certain rules when you are flying an airplane. Okay, आप ऐसे निकल नहीं सकते हो, जो आपका मन करे वो नहीं कर सकते हो. कहीं भी लैंड कर दिया, कहीं पे भी फ्लाई कर लिया. You have to follow certain rules according to the जो भी एयरप्लेन फ्लाई करने के जो रूल्स होते हैं. सो ही वॉज थिंकिंग कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बता देना चाहिए. आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. Nose of the airplane मतलब the front of the airplane. जैसे ही उसने देखा, so he could see lights. वहाँ वो lights देख सकता था. कोई बहुत बड़ी city आने वाली थी तो उसकी वहाँ पे वो lights देख सकता था. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. So उसने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन करके रिपोर्ट करके ये बोला कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. और वो उनको रिपोर्ट कर रहा है. उसने अपने एयरप्लेन का नाम बता दिया, डकोटा DS088. एंड नाउ ही इज इन्फॉर्मिंग देम. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. तो जो वॉइस थी रेडियो पे, उसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट में टर्न करना है. दैट मीन्स आपको अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इंग्लैंड जाने के लिए. ओके. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. So he checked the map और उसके पास जो last fuel tank बचा था जितने में वो इंग्लैंड पहुंच सकता था, वो सारी चीजें उसने चेक की. and after that turned the Dakota 12 degrees west. 12 degrees west में उसने अपना प्लेन को टर्न कर लिया. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. So he was very happy. कि उसने सोचा, उसने कैलकुलेट किया कि अभी यहाँ से मुझे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा. Everything was going well.
It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. सब ठीक चल रहा था. पेरिस उसने पीछे 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था. तब he saw some clouds. उसने कुछ आगे कुछ clouds देखे. Storm clouds. और वो clouds कैसे थे? Storm clouds थे. मतलब उसमें तूफान था उन clouds में. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Now वो जो clouds थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे. They were black और पॉसिबल नहीं है कि ऐसे क्लाउड्स जिनमें स्टॉर्म हो उनके अंदर से निकला जा सके. और उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो या तो नॉर्थ से या फिर साउथ से होकर उनके ऊपर से निकल जाए, उनके नीचे से निकल जाए. इतना उसके पास फ्यूल नहीं था. तो नाउ ही वाज इन अ डिलेमा कि अब क्या करूं मैं. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो उसने सोचा कि प्रैक्टिकल थिंग तो यही होगी कि मैं पेरिस वापस चला जाऊं. बट इन हिज हार्ट ही वांटेड टू बी देयर. ही वांटेड टू बी इन इंग्लैंड. वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था. ही वांटेड दैट सो बैडली कि अब उसने कुछ और डिसीजन लिया. आई टेक दैट रिस्क आई थॉट. उसने सोचा रिस्क लेके देखते हैं क्या होगा. ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा देख लेंगे, बट इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा अगर तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसने वो अपना प्लेन स्टॉर्म के अंदर डाल दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the airplane. अब जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर गया उसको आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. The old airplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. Now उसका जो कंपास था वो भी डेड हो चुका था. दैट मीन्स वो उसको सही डायरेक्शन नहीं बता रहा था. और उसका जो प्लेन था वो इतना ज्यादा तूफान की वजह से इधर उधर हिल रहा था बहुत ज्यादा. I was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. सारे जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब खराब हो चुके थे. कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था. उसने रेडियो से कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट नथिंग वाज वर्किंग. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसको एक और एयरप्लेन दिखा जो उसके बिल्कुल पास में चल रहा था. उस पर कुछ लाइट्स नहीं थी उसके विंग्स पे, जैसे कि एयरप्लेन के विंग्स पे लाइट्स होती हैं, बट वो उसको पास में उड़ता हुआ देख सकता था. स्टॉर्म में भी इतना उसको विजिबल था. I could see the pilot's face turn toward me. पायलट का जो फेस था, उसके पास वाले एयरप्लेन के जो पायलट का फेस था, उसको दिख रहा था कि वो उसकी तरफ देख रहा है. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो उस स्टॉर्म में अकेला वहां पे वो he was very scared, but जैसे उसने एक और एयरप्लेन देखा, एक और पर्सन को देखा तो he was relieved. और उसने जब देखा कि that person is waving, वो अपना हाथ उठा के ऐसे उसकी तरफ वेव कर रहा है. Follow me, he was saying follow me. And what he was trying to say, उसको क्या instructions देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे follow करो. He knows that I'm lost, I thought. He's trying to help me. He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. So he knew that in वो जो other airplane में जो पर्सन था उसको पता था कि वो ट्रबल में है, और वो भी समझ गया था कि उसको पता है कि वो ट्रबल में है. ठीक है. सो ही थॉट कि मेरी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो उसने क्या किया, टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. थोड़ा सा अपना एयरप्लेन नॉर्थ की तरफ कर दिया इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ताकि वो उसको इजीली फॉलो कर पाए, उसको इजीली देख पाए और उसको फॉलो कर पाए. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक obedient child, एक आज्ञाकारी
बच्चे की तरह वो उसके पीछे पीछे जाने में बहुत खुश था, क्योंकि उसको खुद को अभी तो नहीं पता था कि क्या करना है, तो he was very happy to follow him. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Half an hour के बाद तक भी वो जो एक वो strange सा एरोप्लेन था ब्लैक कलर का, वो अभी भी उसके आगे चल रहा था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and follow through the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway. So, अब उसके एरोप्लेन में सिर्फ कितनी देर 5 से 10 मिनट तक वो अपना प्लेन उड़ा सके उतना ही फ्यूल बचा था. नाउ ही वाज बिकमिंग स्केयर्ड अगेन कि अगर प्लेन में फ्यूल खत्म हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो साथ वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा. बट जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर निकला, ही वाज वेरी हैप्पी कि वो रनवे देख सकता था जहाँ पे वो प्लेन को लैंड करवा पाता. एन एयरपोर्ट, आई वाज सेफ. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So, जैसे उसने मुड़ के देखा, the plane was not there. That black aeroplane was there. देखा, ढूंढा, नहीं मिला उसको, वहां पे कोई भी नहीं था. He was the only one. जैसे ही उसने लैंड किया, he walked away from that Dakota, and I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. So when he went there, उसने कंट्रोल रूम में जाके उस वुमन से पूछा कि मैं हूँ कहाँ पे, like where did I land? एंड हु वॉज दैट अदर पर्सन, वो जो दूसरा एरोप्लेन था वो कौन था, क्योंकि द कंट्रोल रूम नोज अगर वहाँ पे उस एरिया में कोई भी एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं तो उनको पता होता है, तो इसीलिए उसने पूछने की कोशिश की. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So she looked at him very strangely, ऐसे अजीब तरीके से उसने देखा, और then she laughed कि इतने ज़्यादा स्टॉर्म में तो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था, तुम्हारे अलावा और कोई प्लेन नहीं था वहाँ पे जो फ्लाई कर रहा था. सिर्फ मैं रेडार पे भी देख रही थी अगर, तो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन मुझे दिख रहा था और कोई प्लेन नज़र नहीं आ रहा था मुझे वहाँ पे. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो अब वो सोच में पड़ गया कि तो फिर वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की वहाँ पे. अगर वहाँ कोई एयरप्लेन है ही नहीं, तो ऐसा कौन था जिसने मुझे बिना रेडियो के या बिना किसी डायरेक्शन के, बिना कंपास के मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया सेफली, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. और जब मेरे पास फ्यूल भी नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फ्यूल भी नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? और वो इतने स्टॉर्म में कौन था वो ऐसा पर्सन जिसके एयरप्लेन पे लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी? हु वॉज दैट पर्सन? सो नाउ देयर वाज दिस मिस्ट्री कि वो कौन ऐसा था जिसने मुझे यहाँ तक डायरेक्शन दिया या मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी. बहुत इनकम्प्लीट सी लगती है हमें ये स्टोरी, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंड में क्या हुआ. So you can make up your own ending, or you can make up any reason कि हो सकता है कि मे बी वो रेडार पे कुछ प्रॉब्लम हुई हो कि वो एयरप्लेन नहीं दिखा हो, या हो सकता है कि उस पायलट का ही बिकेम ब्रेव और उसने कुछ इल्यूजन उसको हुआ हो कि साथ में कोई प्लेन चल रहा है. वो जब मुसीबत में था, when he was in trouble, and so he started making that all up, and there was actually no one. वो सिर्फ उसके माइंड में था, वो उसका इल्यूजन था, वो उसने अपने माइंड में सोच ली थी चीज़ें. सो एनीथिंग कैन हैपन, कोई भी रीज़न हो सकता है. ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.